Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good morning, student. Now see about the blood. Yesterday we have seen that yes, blood is made up of mainly the two component. First component is called as the plasma, and second is called the blood cells. First को क्या बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा और second को क्या बोलते हैं blood cells. Okay, now yes, blood cells. Blood cells are of mainly three types: the red blood cells, white blood cells, and platelets. And you might have heard about that. Yes, when any person suffer from the typhoid, the number of platelets decreases. ऐसा आपने सुना है कि क्या होता है जब किसी को टाइफाइड होती है तो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं. मीन्स प्लेटलेट्स के सेल क्या होते हैं, डिक्रीज. ओके, नाउ यस लेट्स रिवाइज अबाउट द प्लाज्मा. So what is the plasma? Plasma is the liquid material in the blood. In that the blood cells suspended, जिसके अंदर blood cells क्या होते हैं, suspended रहते, तैरते रहते. And yes, plasma is a pale yellow clear solution. ये क्या है, ये pale yellow कलर का लिक्विड है, स्लाइटली अल्कलाइन है, हल्का सा अल्कलाइन होता है. मीन्स इस pH is more than 7 and it contain 90 to 92% water, 6 to 8% protein, 1 to 2% inorganic salts. Second, albumins. This distribute the water all over the body. Globulins. Globulins. It do the work of protections. Fibrinogen and prothrombin help in the blood clotting process. Inorganic ions, calcium, sodium, potassium that control the functions of the muscles and nerves. Now yes, about the cells, blood cells that are present in the blood. Red blood corpuscles, that is RBCs, their structures, now they are small, circular and nucleated cell. These cells appear red due to the hemoglobin. Oxygen dissolved in the blood due to the hemoglobin. So because of the hemoglobin, the oxygen absorbed by the blood. 50 to 60 lakhs RBCs are present in each क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड. अब एक क्यूबिक मिलीमीटर अगर ब्लड लेते हैं तो उसमें 50 to 60 lakhs ऑफ आरबीसीज सेल्स आर फाउंड. तो यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ द आरबीसीज कि आरबीसीज का साइज कितना स्मॉल है. आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन रेड bone marrow and live for about 100 to 127 year. Till year we have completed study. Mean the lifespan of the red blood cells are 3 month to 4 month. यू कैन से 3 month से लेकर 4 month का उनका लाइफ स्पेन है. और इस लाइफ स्पेन में ही वो क्या होते हैं, आफ्टर दैट लाइफ स्पेन दे इस ऑटोमेटिकली बिकम डेड. अपने आप वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं. तो दैट्स वाई yes, there is a generation of the RBCs continues in our body. So that's why to help the patient we can donate the blood. And if we do not donate the blood, still yes, these cells become dead after the 4 month. White blood cells, short form of it WBCs. These are large nucleated and colorless cells. Now देखो first point, difference between the red blood corpuscles and white blood corpuscles. The cells of white blood have the nucleus and the red blood cells do not have the nucleus. 50,000 to 1 lakhs, no sorry, 5,000 to 10,000 WBCs are present per cube millimeter of the blood. Cubic millimeter of the blood. Yes, now see RBCs, they are found 50 to 60 lakhs of the RBCs in each cubic millimeter. But yes, in the 1 cubic millimeter
Yes, the WBCs are only 5,000 to 10,000. 5 types of the WBCs are present. ब्लड में 5 टाइप्स के WBCs होते हैं. दे आर बेसोफिल्स, ionophils, neutrophils, monocytes and lymphocytes. So these are the types of the WBCs. What are that types? Basophil, eosinophils, neutrophils, monocyte and lymphocytes. WBCs are produced in red bone marrow. So both RBCs as well as WBCs both are produced in the red bone marrow. WBCs act as soldiers in our body. अब ये जो WBCs है ये हमारे बॉडी में सोल्जर्स की तरह ही काम करता है. जैसे कि सोल्जर्स दे प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स. बॉर्डर को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते, सेफ करते हैं. और इसीलिए हम लोग क्या रहते हैं, ये साउंड स्लीप में क्या करते, स्लीप करते नाइट में, रात में गहरी नींद में सोते हैं. क्योंकि ये क्या है, द बॉर्डर्स आर गार्डेड बाय द सोल्जर्स. सोल्जर्स क्या करते हैं, बॉर्डर की रखवाली करते हैं, इसलिए. तो सेम अपनी बॉडी में जो फॉरेन, जो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड, वाटर, एयर के साथ जो एंटर करते तो उनके साथ में फाइट करने का काम जो ये WBCs करते हैं, उनको रोकने का काम WBCs करते हैं. Functions. These cells attack the pathogens. These cells attack the pathogen entering our body. अब जो ये WBCs है ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी में एंटर होने वाले, हमारे बॉडी में एंटर होने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ये फाइट करने का काम करता है. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम माइक्रोबियल डिजीज. और वो हमको इस तरह से प्रोटेक्ट करके माइक्रोबियल डिजीज से बचाते हैं. नाउ ये थर्ड सेल दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड, प्लेटलेट्स. क्या है थर्ड वन? प्लेटलेट्स. दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड डिस्क शेप. दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड डिस्क शेप. ये प्लेटलेट भी क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, और ये भी ये डिस्क के शेप के होते हैं. 2.5 to 4 lakhs platelets are present per cubic millimeter of the blood. अब देखो इसका जो क्या है, ये अमाउंट 2.5 to 4 lakhs platelets. ओके, एक क्यूबिक मिलीमीटर में 2.5 से 4 लाख प्लेटलेट के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. नाउ फंक्शन. प्लेटलेट्स पार्टिसिपेट इन द ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस. जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है. Now function of the blood. Okay, so here, yes, overall function of the blood. Okay, and in that table we have seen the function of the each type of the cell that present in the blood. Now yes, here we have to see the function of all over the blood. Now yes, see the first, transport of the gases. Transport of the gases कि गैस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के थ्रू. Oxygen is carried via blood from lungs to cells in various parts of the body, and carbon dioxide from tissues to lungs. Now yes, transport of the gases, and we know that yes, air when reaches to lungs absorb the oxygen from it, and then through the blood it is circulated throughout the body into each and every cells. Transport of the nutrient. Now we know that yes, food digestion completes in the in small intestine, then it is absorbed into the blood, and blood circulate the nutrients yes throughout the body. So simple nutrients like glucose, amino acid, fatty acids are taken up by the blood from wall of the alimentary canal and transported up to each cells in the body. Now transport of the waste material. Transport of the waste material. Nitrogenous waste like ammonia, urea, creatinine are released by tissue into the blood, which carries those to kidney for excretion. Now yes, जो liquid form में जो
materials है, like nitrogenous waste like ammonia, urea, creatinine, etc. are released into the blood, and this blood carries these waste material to the kidney, and kidney filters out the waste material, and yes, it then yes passes into the tubules, and then yes through the urination that waste materials are excreted from the body. Next, protection. Antibodies are produced in the blood, and they protect the body from the microbes and other harmful particles. Now, when any microorganism enter from the outside, then the antibodies means the immunity to fight against that disease is yes produced in our body, and then it fights against that microorganism. Transport of the enzymes and hormones. Now yes, we know that there are the many glands which secrete the hormones. They are ductless. वो ductless है means they are not connected to the duct. They releases their secretion in the blood, and blood carries out all these ये secretion, or you can say hormones, throughout the body through the blood. The blood transport the enzymes and hormones from the site of their production to site of their actions. ये जो जहाँ पे प्रोड्यूस होता है उस साइट से जहाँ पे उसकी ज़रूरत है उस साइट तक मीन्स उस प्लेस तक हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सभी को कैरी करने का काम क्या है, ब्लड करता है. थर्मो रेगुलेशन. थर्मो मीन्स व्हाट, हीट. रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना या कंट्रोल करना. तो थर्मो रेगुलेशन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का भी वर्क ये ब्लड करता है. बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन constant at 37 degree by the vasodilation and vasoconstrictions. Now next point, maintaining the balance of the mineral like sodium, potassium in the body. Maintaining the balance of mineral like sodium, potassium in the body, and if bleeding occurs at the injury, platelets and protein called fibrinogen of the blood form a clot and seal the injury. तो अगर किसी कट की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, इंजरी होने की वजह से अगर ब्लीडिंग होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम, ब्लड को क्लोट करने का काम, उसको जमाने का काम जो है ये प्लेटलेट्स एंड जो उसके अंदर प्रेजेंट, ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट प्रोटीन है फाइब्रिनोजीन, ये दोनों मिलकर उसको क्या करते, क्लोट कर देते, खून जम जाता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स. नाउ यस, ह्यूमन ब्लड के क्या है, ग्रुप्स के बारे में स्टडी करना. यस, यू ऑलरेडी नो दैट, yes, that the blood have the mainly four groups, group A, B, AB and O. क्या ये हम लोगों को मालूम है? ब्लड ग्रुप ए, बी एंड ओ, इस तरह से कितने ग्रुप है? 4. पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी एंड चौथा क्या है? यस, ब्लड ग्रुप ओ. डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन्स लाइक एंटीजेन, depending upon the protein like antigen and antibodies, different blood group are formed. There are the four main group of the blood as A, B, AB and O. Besides, there are the two types as Rh negative and Rh positive, each of those four groups. Okay, now you see, yes, main groups are A, B, AB and O. And beside of it, और इसके अलावा, there are the again two types, RH positive and RH negative. इसके अलावा क्या है? ये RH positive and RH negative. Means A positive, A negative, B positive, B negative, AB positive, AB negative. Thus, in all, 8 blood groups are formed. A RH positive, A RH negative.
तो यस बी विल बी ऑल्सो बी आर एच पॉजिटिव आर एच निगेटिव, ए बी आर एच पॉजिटिव आर बी निगेटिव, एन ओ आर एच पॉजिटिव एंड आर एच निगेटिव. तो in this way, yes, when the RH factor is taken into account, then these four groups form the total 8 groups. तो 8 ग्रुप्स उसका बन जाता है. ओके कैसे? अगर ए ग्रुप लिया हम लोगों ने तो क्या लिखेंगे? यस ए पॉजिटिव एंड ए निगेटिव. सिमिलरली बी बी पॉजिटिव एंड बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ निगेटिव. तो इन दिस वे देयर आर द 8 ग्रुप्स. ब्लड डोनेशन. ओके ब्लड डोनेशन. अब ब्लड डोनेट करना. If a person meet an accident, bleeding occurs through wound. If a person meet an accident, bleeding occurs through wound. अगर कोई पर्सन को एक्सीडेंट होता है तो ब्लीडिंग occurs through the wound. wound मतलब जख्म, घाव. तो जख्म और घाव से क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, खून बहता है. Many times blood transfusion is necessary during the surgical operation. Many time blood transfusion. ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीन्स ब्लड चढ़ाना. हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्लड चढ़ाना. तो अगर किसी को सर्जरी के टाइम क्या है, ये ब्लड ज़्यादा फ्लो हो गया, जैसे कि क्या है, ये ब्लड द वेल सर्जरी, तो in complicated surgery what happens, sometimes there is a cut of the arteries or veins. तो arteries और veins क्या होते हैं? कट जाते हैं. सर्जरी के टाइम क्या होते हैं? जो अपनी बॉडी में फैले हुए आर्टरीज और वेन्स हैं, वो वेन्स और आर्टरीज क्या है? कट जाते हैं. तो बिकॉज ऑफ देयर इज अ यस फ्लो ऑफ द ब्लड, तो ज़्यादा ब्लड बह जाता है. तो दैट टाइम दैट पेशेंट नीड द ब्लड, ओके, फ्रॉम द आउटसाइड. तो उसको बाहर से ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है. तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ये ब्लड बैंक से ब्लड अवेलेबल करा के, या कोई पर्सन क्या है ये अवेलेबल है उसका ब्लड उसके बॉडी में क्या किया जाता है? डाला जाता है. दिस इज कॉल्ड एज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. इन केस ऑफ द पेशेंट्स ऑफ द एनीमिया, थैलेसीमिया, कैंसर टू. अब जो ये टाइप के पेशेंट हैं, इन बीमारियों के पेशेंट है, एनीमिया, थैलेसीमिया एंड कैंसर, इनको भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत ही ज़रूरत होती है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कैरिड आउट टू कंपनसेट द ब्लड शॉर्टेज इन द बॉडी. अब जो बॉडी के अंदर ब्लड कम हो गया है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है. दिस इज कॉल्ड एज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. फ्रॉम वेयर द ब्लड इज सप्लाइड फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड कहाँ से सप्लाई किया जाता है? मतलब कि उस पेशेंट को ब्लड कहाँ से अवेलेबल कराया जाता है? ब्लड बैंक्स. तो ये कहाँ से कराया जाता है? ब्लड बैंक से. तो ब्लड इज कलेक्टेड इन ब्लड बैंक बाय स्पेसिफिक मेथड फ्रॉम द हेल्दी पर्सन एंड सप्लाइड टू द नीडफुल पर्सन. अब ये जो ब्लड है हेल्दी पर्सन से कलेक्ट करके पेशेंट को क्या किया जाता है? ये सप्लाई करने का काम किया जाता है. ये सप्लाइंग द स्पेसिफिक मेथड. If collected blood is not to be used immediately, if the collected blood is not be used immediately, it can be stored for some days in refrigerator. अगर जो ब्लड हम लोगों को अवेलेबल हो रहा है वो हम लोगों को तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसको हमको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है. ब्लड डोनर. ब्लड डोनर. अब ब्लड डोनर कौन है? जो पर्सन ब्लड डोनेट करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड ब्लड डोनर. बट दैट डोनर शुड बी हेल्दी. जो डोनर क्या होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए. और वो ज़्यादा एजेड और चाइल्ड होना नहीं चाहिए, अदरवाइज उसका ब्लड लिया नहीं जाता. तो जो यंग वंस होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली ब्लड डोनर्स होते हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं. पर्सन हु डोनेट्स द ब्लड इज रेफर्ड एज द ब्लड डोनर. वो पर्सन जो ब्लड डोनेट करता है उसी को बोलते हैं क्या? ब्लड डोनर. ब्लड रिसिपिएंट. जिस पर्सन को ब्लड सप्लाई की जाती है, दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लड रिसिपिएंट. द पर्सन हु रिसीव द ब्लड इज रेफर्ड एज द रिसिपिएंट.
जो ब्लड क्या करता है, रिसीव करता है, या जिसको बाहर से ब्लड क्या की जाती है, चढ़ाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लड रिसिपिएंट। पर्सन ऑफ द ब्लड ग्रुप ओ कैन डोनेट द ब्लड टू द पर्सन हैविंग एनी अदर ब्लड ग्रुप। अब देखो, ये जो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, बिकॉज ओ में क्या है, ये जो एंटीबॉडीज़ है, ये जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ है वो अब्सेंट है, इसलिए वो किसी भी क्या है, ये पर्सन को वो ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। तो दैट्स वाई द ब्लड ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल डोनर। तो ओ का ब्लड किसी भी पर्सन को क्या है, दिया जा सकता है। ठीक है, ओ का ब्लड क्या हो सकता है, किसी भी पर्सन को दे सकते हैं हम लोग, इसलिए क्या है, वो ब्लड ग्रुप ओ वाले को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। नाउ द ब्लड ग्रुप ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, दैट पर्सन कैन टेक द blood of the blood group A, can take the blood of blood group B and blood group AB as well as blood group O also. So that's why the person who have the blood group AB called the universal acceptor. universal क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्टर, क्योंकि उसको किसी भी पर्सन का ब्लड दिया जा सकता है, बिकॉज उसके अंदर जो एंटीजन ए भी है, बी भी है और ए बी भी है, इसलिए the person of the blood group O can donate the blood to the person having any other blood group, whereas the person with AB blood group can receive the blood from the any other blood group. Hence, person of the blood group O is called as the universal donor and person with the blood group AB is called universal recipient. तो इस तरह से ओ को यूनिवर्सल डोनर और ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला जाता है। ब्लड ग्रुप्स आर हेरिडिटरी एंड डिपेंड अपॉन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट। जो ब्लड ग्रुप्स है वो हेरिडिटी है, और हेरिडिटी मीन्स क्या, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है उसका क्वालिटी। एंड blood transfusion is performed only after the blood group matching। blood transfusion सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये मैच होने वाले, सेम मैच होने वाले ब्लड ग्रुप का ही ब्लड उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूज कर सकते, दे सकते हैं। इफ़ इट इज़ डन विदाउट मैचिंग इट मे प्रूव फैटल फॉर द पेशेंट। अगर किसी दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड उस पर्सन को डोनेट दिया गया तो उसके लिए वो फैटल होता है, उसके लिए वो जानलेवा हो जाता है। पर्सन हु डोनेट द ब्लड में बी रिसिपिएंट इन फ्यूचर। जो पर्सन ने डोनेट किया है ब्लड वो क्या हो सकता है, फ्यूचर में रिसिपिएंट हो सकता है, उसको भी ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्लड डोनेशन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इज़ ऑलवेज लाइफ सेविंग। ब्लड का डोनेशन बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी आशा के करना, मतलब किसी चाहत के करना, हमेशा क्या है, ये दूसरे की लाइफ सेविंग के लिए होता है। तो ब्लड डोनेशन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इज ऑलवेज लाइफ सेविंग। ब्लड इज रिक्वायर्ड इन वेरियस सिचुएशंस लाइक एक्सीडेंट्स, ब्लीडिंग, parturition, surgical operation, etc. Blood donated by the healthy person is used to save the life of the needful person। अब ये ब्लड डोनेशन बहुत सारे नीडफुल पर्सन की लाइफ को सेव कर सकते, बचा सकते, बिकॉज ब्लड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द फैक्ट्री। उसको फैक्ट्री में और किसी दूसरे मेथड से कहीं भी बाहर मैन्युफैक्चर हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए ह्यूमन बींग को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ह्यूमन बींग का डोनेटेड ब्लड ही काम में आता है। ब्लड डोनेटेड बाय द हेल्दी पर्सन इज नीड टू सेव द लाइफ ऑफ द नीडफुल पर्सन, हेंस ब्लड डोनेशन इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट डोनेशन। अब ब्लड डोनेशन बहुत सारे लोगों की लाइफ को बचा सकता है, इसलिए ब्लड डोनेशन को
बेस्ट डोनेशन बोला जाता है, सबसे अच्छा डोनेशन बोला जाता है। यस मुस्कान, क्या पूछना है? यस मुस्कान, यू वाज रेजिंग द हैंड। यस टेल मी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? यस, compensate means compensating meaning here to fulfill मीन्स क्या है, ज़रूरत को पूरा करना। यहाँ पे कंपनसेट का मतलब क्या है? वो जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को फुलफ़िल करना, पूरा करना है। ठीक है, जैसे अगर बॉडी में क्या हो गया, ये ब्लड का फॉर्मेशन किसी के बॉडी में कम हो रहा है, जितनी ज़रूरत है उससे कम हो रहा है, तो उसको भरने के लिए क्या है, ये ब्लड उसको बाहर से चढ़ाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो उसको ही क्या करना, उस कमी को पूरा करना ही क्या है, कंपनसेट है। Now yes, next see the blood pressure. अब देखो, yes you are aware about the blood pressure. You generally heard from many person that they are suffering from the blood pressures. Okay, and in the lesson of the atmospheric pressure, you have studied that the pressure of atmosphere is equals to pressure of our blood, and because of this, yes we do not feel the pressure of the air. इसकी वजह से हम लोगों को एयर का प्रेशर फील नहीं होता, बिकॉज ब्लड का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर सेम है। तो अब ये ब्लड प्रेशर, ये हम लोग ने देखा है, ये स्टेथोस्कोप से ब्लड प्रेशर, सॉरी, ये स्पाइगनो मैनोमीटर से क्या करते हैं, ये ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। जो भी पर्सन ब्लड प्रेशर का होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो क्या करता है डॉक्टर, उसका बीपी मेजर करता है। तो उसमें दो टाइप के प्रेशर्स होते हैं, एक लो प्रेशर होता है और एक हाई प्रेशर्स होता है। अब ये हाई प्रेशर किसकी वजह से होता है ब्लड का, और लो प्रेशर क्यों होता है इस ब्लड का, वो इस पैराग्राफ में हम लोग देखने वाले हैं। तो यू नो दैट द यस मिनिमम लोवेस्ट ब्लड प्रेशर शुड बी यस अबाउट 90। क्या होना चाहिए, जो लोअर है नॉर्मल पर्सन के लिए वो 90, और मैक्सिमम क्या होना चाहिए उसके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रेशर होना चाहिए, 120। अगर क्या ये उसका जो प्रेशर है ए 90 से कम होता है, 90 के आसपास है, तो इट्स ओके फॉर द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ओके। एंड अगर 90 से लेस होता है मीन्स इट हैव द लो ब्लड प्रेशर दैट टाइम, और अगर वो क्या है 120 से ग्रेटर होता है तो क्या है, वो ज़्यादा है। तो नाउ ये देयर इज़ अ वन लोअर लिमिट एंड वन अपर लिमिट फॉर द प्रेशर। अब यहाँ पे एक बार लोअर लिमिट है और एक बार अपर लिमिट है। नाउ यू नो दैट दिस प्रेशर इज जनरेटेड बाय द हार्ट। जो ब्लड का प्रेशर है ये हार्ट की वजह से जनरेट होता है, बिकॉज हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, देन द impure blood from the lower chamber goes to the lung. Similarly, from the left ventricle, it goes into the throughout the इस बॉडी। वहाँ से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ही वो ज़्यादा प्रेशर के साथ में प्योर एज वेल इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल is comes out from the heart and is flow into the different parts of the organ, and is the deoxygenated blood that collected into the right ventricle goes into the heart. So when there is a contraction, that time the blood pressure is high, and when the heart relax, जब हार्ट क्या करता है, रिलैक्स करता है, दैट टाइम द प्रेशर of the blood become less. So the pressure, when the pressure is high, then it is called as the systolic pressure.
means when there is a contraction, then the pressure is high, and this pressure is called as the systolic pressure, and when the pressure is low, the pressure is called as the diastolic pressure. So yes, this high and low pressure is created by the contraction and relaxation of the हार्ट. जब हार्ट क्या करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ज़्यादा प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं. और वो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, नॉर्मल पर्सन के लिए अबाउट 120 mm. और क्या है ये मिनिमम जो है, ये जब वो रिलैक्स होता है तो उसका प्रेशर कम होता है ब्लड का, उस टाइम उसका प्रेशर नॉर्मल पर्सन के लिए 90 होता है. ब्लड प्रेशर. Blood is continuously kept flowing through the blood vessels due to the contraction and relaxation of the heart. जो ब्लड है ये लगातार क्या है, ब्लड वेसल्स में हमेशा बहते रहता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से. नाउ यस, व्हाट आर द ब्लड वेसल? Arteries and veins. These two are the blood vessels. Artery carries the oxygenated blood and the veins carries the deoxygenated blood. Due to the contraction of the heart, pressure exerted on the walls of artery, it is called as the blood pressure. Due to contraction of the heart, pressure is exerted on the wall of the artery and it is called as the blood pressure. अब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, उसकी वजह से जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर, वो अंदर से क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं. उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर. प्रॉपर ब्लड प्रेशर इज नेसेसरी टू सप्लाई द ब्लड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब ये प्रॉपर ब्लड का प्रेशर होना कंपलसरी है, देन ओनली द ब्लड विल बी सप्लाइड थ्रू आउट द बॉडी. प्रेशर प्रोसीड्स pressure recorded during the contraction of heart is called systolic pressure. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम का जो प्रेशर होता है हाई होता है, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर. एंड दैट वन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर. और जब वो हार्ट रिलैक्स होता है उस टाइम जब क्या है प्रेशर मेजर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. द ब्लड pressure of the healthy person is about 120 to 80 mm, 120 to 80 mm to 140 to 90 mm of Hg. It is measured with the help of the स्फाइगनोमैनोमीटर. और इसको जो क्या है डिवाइस जो यूज करते हैं उसका नाम क्या है, स्फाइगनोमैनोमीटर. ओके, so what is the systolic pressure and what is the diastolic pressure? Understood? The pressure exerted on the walls of the arteries when the heart contracted, and when there is relaxation in the heart, that time pressure is less, and this pressure is called as the diastolic pressure. Now hypertension. क्या देखना है अभी हम लोगों को, हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन इज द हाई ब्लड प्रेशर. हाइपरटेंशन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर से. हाई ब्लड प्रेशर दैट द नॉर्मल इज हाई ब्लड प्रेशर देन द नॉर्मल इज रेफर्ड एज हाइपरटेंशन. जो नॉर्मल प्रेशर से अपने ब्लड का, उससे ज़्यादा ब्लड का प्रेशर होना ही क्या है, हाइपरटेंशन. इन आर्टरीज ऑफ द पर्सन विद द हाइपरटेंशन अननेसेसरी टेंशन डेवलप. अब जो आर्टरीज है उस आर्टरीज में पर्सन के बिना ज़रूरत के ज़्यादा टेंशन डेवलप हो जाता है. हार्ट नीड टू परफॉर्म मोर फंक्शन दैन द नॉर्मल कंडीशन. तो इसलिए हार्ट को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है फॉर नॉर्मल कंडीशन इन केस ऑफ हाइपरटेंशन. बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स आर हाई इन हाइपरटेंशन. और ये सिस्टोलिक एज वेल एज डायस्टोलिक प्रेशर उस पर्सन के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है जब उसको हाइपरटेंशन होता है. नाउ सी द टेबल. नॉर्मल ब्लड प्रेशर 90 to 190 mm. Systolic pressure. Okay, now diastolic pressure is 60 to 70 mm. डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 60 से लेकर 79
मीन्स 80 mm होना चाहिए। प्राइमरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन 120 to 139 mm, एंड डायस्टोलिक प्रेशर इट शुड बी 80 to 90, इस रेंज में होना चाहिए। हाइपर टेंशन स्टेज 1 140 to 150 mm, एंड हियर 90 to 99 means about 90 to 100 mm, and hypertension stage 2 greater than 160 mm, and here yes diastolic pressure greater than 100 mm, mm मतलब मिलीमीटर। ऑलवेज रिमेंबर, क्या याद रखना है वो बाद में देखेंगे। नाउ सी द ब्लड ग्रुप, ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप वेयर आर डिस्कवर्ड बाय द कार लैंड स्टेनर इन 1900। ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप, ये तीनों ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी कार्ल लैंड स्टेनर ने 1900 में किया। ही ओन द नोबेल प्राइज ऑफ द 1930 फॉर दिस डिस्कवरी, और इसके लिए इस ब्लड ग्रुप के लिए उनको नोबेल प्राइज से अवॉर्डेड किया गया। ब्लड ग्रुप ए बी वॉज डिस्कवर्ड बाय द डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली इन 1902। तो ये 1902 में ब्लड ग्रुप ए बी की डिस्कवरी डी कैस्लो एंड स्टर्ली ने किया। नाउ हेमेटोलॉजी, दिस इज द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस दैट डील्स और दैट स्टडी अबाउट द ब्लड। हेमेटोपोइटिक organ and blood diseases is called hematology. The branch of medical science that deals with the study of the blood. Hemato Hematopoietic organ and blood disease called hematology. Research of the diagnosis and remedies of the blood disease is also performed in the branch. अब इस ब्रांच में डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब क्या है, ये उसका निदान, फाइंड आउट करना रीजंस की बीमारी का, एंड रेमेडीज ऑफ द ब्लड डिजीज, और उस ब्लड की डिजीज का क्या रेमेडीज है उसके लिए यहाँ पे रिसर्च भी होते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ अनम्यूट योर सेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी नाउ, देन आई विल एंड द मीटिंग। Yes, is there anybody having any doubt? Okay, yes, you have to read the always remember. Blood production occur continuously in our body. About 350 ml of blood is collected from person during donation, and our body restore the fluid part of its within 24 hours। अब देखो जब भी कोई पर्सन ब्लड को डोनेट करता है तो वो 350 ml उससे ब्लड लिया जाता है, मतलब कि 1 पाव लीटर से 100 ml ज़्यादा।